Assalamu alaikum and what's up guys, it's you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, our today's topic is impetigo. Now, what is impetigo? Basically, this is a superficial bacterial skin infection in which you can see VP skin rashes or lesions. Now, what sort of VP skin rashes or lesions these are? These are basically the rashes or lesions with a red base that may develop into yellow or honey colored crusts or scabs. ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये पहले रेड बेस होती है इन लेजेंस की एंड आहिस्ता आहिस्ता ये क्रस्टेड फॉर्म में फिर येलो हनी कलर्ड क्रस्टेड लेयंस बन जाती हैं, कॉर्नफ्लेक लाइक अपेरेंस हो जाती है. मैं अभी आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ. ठीक है. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू दिस इज़ अ बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन. ठीक है. एंड इट इज़ कॉज्ड मोस्टली बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियाज. ठीक है. मोस्ट फ्रीक्वेंटली इट इज़ सीन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन बट इट मे बी सीन इन एडल्ट्स एज वेल. Now, you can see it is caused by Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes most commonly. Impetigo, as I've told you, it is a common bacterial infection of the skin. It mostly affects babies and kids, though it may affect young adults as well. Then let's see impetigo in a glance. So as I've told you, it is a skin infection. इसमें red sores बनती हैं that are formed around the nose and the mouth, and then it spreads via skin to skin contact and is treatable. इसमें कौन से हमारे पास बैक्टीरियाज इन्वॉल्व हैं? तो इसमें हमारे पास ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है दे आर इन्वॉल्व. इट इज़ अ हाईली कंटेजियस डिजीज़, इसलिए इसको पेशेंट्स को डील करते हुए ट्राई वेयरिंग मास्क एंड वेयरिंग ग्लव्स. ठीक है. देन इट मे अफेक्ट चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स मोस्ट कॉमनली, दो इट मे अफेक्ट एडल्ट्स एज वेल. नाउ हाउ कैन यू गेट impetigo? Impetigo may be seen after close contact with infected individuals, जैसे कि एथलीट्स हैं जिसमें रेसलर्स या फुटबॉल प्लेयर्स भी आ जाते हैं. ठीक है. Additionally, common eczema, herpes, trauma, or any other skin barrier disruptions may also develop a secondary impetigo infection. ठीक है. अब ये मैंने आपको बताया था ना, इसमें आपको क्रस्टेड लेयंस, येलो क्रस्टेड लेयंस विद कॉर्नफ्लेक लाइक अपेरेंस नज़र आती है एंड बेस इसकी क्या होती है? रेड, जैसे आपको नज़र आ रही है रेड बेस है और ऊपर ये येलो लेयंस हैं एंड मोस्टली इट इज़ सीन अराउंड द नोज एंड द माउथ. ठीक है. सो इस तरह की ये impetigo की अपेरेंस होती है. नाउ व्हाट आर द कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ फॉर impetigo? सो चिकन पॉक्स, herpes simplex, insect bites, pediculosis, radiation therapy, scabies, scratching, surgery, thermal burns and trauma. इन सब के बाद impetigo के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. नाउ लेट्स सी अबाउट द सिम्टम्स ऑफ impetigo. सो सिम्टम्स में आपको मैंने जैसे बताया रेड सोर्स होते हैं विच आर यूजली फाउंड अराउंड द नोज एंड द माउथ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल. ठीक है. दीज कैन बी प्रेजेंट ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो. ठीक है. द सोर्स क्विकली बर्स्ट फॉर्मिंग गोल्डन क्रस्ट्स एज यू कैन सी ओवर हेयर. ये गोल्डन क्रस्ट्स बन रहे हैं. ठीक है. एंड दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 2 centimeter across. This is the stage at which the infection has a cornflake-like appearance. You can see this infection has honey-crusted lesions with a cornflake-like appearance. ठीक है. Now again, let's see about the symptoms. So these symptoms basically start with red sores or blisters, as I've already told you, but the redness may be harder to see in brown and black skin patients. ठीक है. The sores or blisters, they quickly burst and leave crusty golden brown patches. The patches can look a bit like cornflakes stuck to your skin, get bigger, spread to other parts of your body, be itchy and sometimes be painful as well. नाउ हेयर यू कैन सी impetigo, दैट इज़ अ बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन. इसमें आप देख सकते हैं कि ये सोर्स जो बने हुए हैं impetigo सोर्स, दे बर्स्ट एंड दे डेवलप गोल्डन कलर्ड क्रस्ट्स दैट कैन बी येलोइश. ठीक है. और इनको हम नाम देते हैं कि दीज आर हनी कलर्ड क्रस्ट्स. ठीक है. नाउ देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ impetigo. स्टेज 1 में आपके पास बुला बनता है, स्टेज 2 में लेयंस बनते हैं इस तरह से, स्टेज 3 में फिर वो प्रोलिफरेट करते हैं, उनकी प्रोलिफरेशन होती है एंड स्टेज 4 में वो रिकवर कर जाते हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ impetigo? इसमें नॉन बुलस, बुलस, एक्थाइमा आ जाता है. नॉन बुलस में यू कैन सी पैप्यूल्स, वेसिकल्स एंड पस्ट्यूल्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. रैपिडली दे ब्रेक डाउन, दे फॉर्म गोल्डन एडहेरेंट क्रस्ट्स often located on face or extremities. जो बुलस impetigo है इसमें फ्लैसिड फ्लूइड फिल्ड बुला है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं. ठीक है. These rupture leave a thin brown crust often located on trunk.
ठीक है। ये नॉन बुलस फेस और एक्सट्रीमिटीज़ पे नज़र आते हैं, बुलस आपको ट्रंक पे नज़र आएगा। देन कम्स एक्थाइमा, दीज आर पंच्ड आउट अल्सर्स, ओवरलाइंग क्रस्ट होते हैं इसमें, एंड दीज आर रेज्ड वायोलेशियस बॉर्डर्स, दे हैव रेज्ड वायोलेशियस बॉर्डर्स, ठीक है। ट्रीट हम किस तरह से करते हैं? सो ट्रीटमेंट में आप टॉपिकल मुपिरोसिन या रेटापोमुलीन देंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। मुपिरोसिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस मेनली। एक्सटेंसिव अगर है, अगर लिमिटेड है तो फिर आप ये टॉपिकल मुपिरोसिन दे देंगे, ठीक है, या फिर रेटापोमुलीन दे सकते हैं। एक्सटेंसिव अगर एम्पेटाइगो है तो इसमें फिर आप सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी शुरू करवाएंगे, जिसमें आप डाइक्लोक्सिलिन या सिफलेक्सिन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मर्सा सस्पेक्टेड है तो फिर आप क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल भी देंगे। इन तीनों में से कोई दे सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी दीज आर द येलो क्रस्टेड हनी कलर्ड क्रस्टेड लायंस, ठीक है, विद कॉन्फ्लिक्ट लाइक अपीयरेंस। बहुत क्लियरली आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये वो बुला है, बुलस इम्पेटाइगो है, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी दीज आर रप्चर्ड बुलास, ठीक है। ये एक्थाइमा वाली पंच्ड आउट अल्सर्स टाइप हैं, ठीक है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी। नाउ दिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस दैट आई हैव टोल्ड यू, मुपिरोसिन, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसके अलावा आप फ्यूसिडिन भी दे सकते हैं, ठीक है। फ्यूसिडिन क्रीम फ्यूजिडिक होती है, इसमें फ्यूजिडिक एज के नाम से भी आती है, ठीक है। Okay, now let's study this case again. Let's give it a overview, ठीक है। So impetigo, as I've told you, it is a highly contagious skin infection. Mostly it affects children up to 18 years. इसमें Staphylococcus aureus is the causative agent, and also Streptococcus pyogenes may cause impetigo. It affects the nasolabial folds, area below lips, chin, angle of mouth, and mostly it is seen in children. Now there are mainly broadly classifying two types, non-bullous impetigo and bullous impetigo. जो non-bullous impetigo है ये मोस्टली उन पेशेंट्स में नज़र आता है जिनको कीड़ा वगैरह काट गया हो या कोई कट लग गया है, उस जगह पे जब इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से नॉन बुलिस इम्पेटाइगो होता है, ठीक है। इट इज़ लेस वेयर एंड इफ़ नॉट स्प्रेड ऑन द होल फेस, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आप उसको ओपीडी में ही ट्रीट करें, ठीक है। अगर लिमिटेड एरिया ऑफ जो फेस है वो इन्वॉल्व है, लाइक नोज़ या माउथ के इर्द गिर्द है, तो फिर आप उसको ओपीडी में ट्रीट कर लेते हैं। आप ऐसे पेशेंट्स को एडमिट नहीं करते, ठीक है। अब इसमें आपको नज़र क्या आता है? रेड इची सोर्स नज़र आते हैं, दैट oozes pus and then that pus crusts over with a honey colored crust, and these sores usually appear on face, arm या legs. It is bacterial infection, not fungal infection. Then ये तो मैंने आपको बताया अबाउट वन ऑफ द टाइप दैट इज़ नॉन बुलस इम्पेटाइगो। अब हम देखते हैं बुलस इम्पेटाइगो। बुलस इम्पेटाइगो को आप ओपीडी में ट्रीट नहीं करते, ऐसे पेशेंट्स को आप एडमिट करते हैं और स्पेशलिस्ट इनको डील करते हैं। एंड दीज बुलस इम्पेटाइगोज में अपेयर एनी वेयर ऑन द बॉडी। मैंने आपको दिखाया था ना किस तरह से बड़े बड़े बुलास बन रहे थे, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो दीज में अपेयर एनी वेयर ऑन द बॉडी। मोस्ट कॉमनली इट इज सीन ऑन द ट्रंक, बटक एंड लेग्स। लेस कॉमन टाइप में जो है इट कॉजेज लार्ज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, ठीक है। ये लेस कॉमन होता है बुलस इम्पेटाइगो, लेकिन इसमें लार्ज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स बनते हैं। अब ट्रीट आप किस तरह से करेंगे? विद इन 1 वीक आप मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करेंगे। सबसे पहले तो आपने पेशेंट को काउंसिल करना है। काउंसिल क्या करना है? दैट डोंट वेट द अफेक्टेड एरिया। आपने उस एरिया को खुश्क रखना है, ड्राई रखना है एंड उसको साफ़ रखना है, ठीक है। जेंटली क्लीन इट विद लिटिल वाटर। डोंट स्क्रैच इट विद द नेल्स बिकॉज इट मे स्प्रेड। डोंट यूज टॉवल्स एट दीज एरियाज। अवॉइड टचिंग दीज एरियाज एंड देन eating meal. Ask the patient to avoid going to school, especially at least for 3 to 4 days until the symptoms start subsiding because it is highly contagious, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस मैंने आपको बताया था, इसको ट्रीट करने के लिए मुपिरोसिन है, ठीक है। मुपिरोसिन के नाम से आता है ब्रांड नेम, ठीक है। इट इज़ एक्सेलेंट टू किल बैक्टीरियाज। डायरेक्टली अप्लाइड फॉर 2 to 3 times a day for at least 7 days and 3 times a day अप्लाइड, ठीक है। 2 to 3 times आप दिन में इसको लगाएं फॉर एटलीस्ट 7 days, ठीक है। देन एक और आपके पास है ब्रांड नेम बेक्ट्रोबैन के नाम से भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप फ्यूजिटिक एसिड दे सकते हैं, कुछ लोग ये भी रिकमेंड करते हैं। अच्छा, इस टॉपिकल ऑइंटमेंट के अलावा आपने पेशेंट को देना है रिजिक्स। बच्चा है तो सिरप दें, बड़ा है तो आप उसे टैबलेट रिजिक्स दें, ठीक है, ताकि इचिंग ना हो पेशेंट को।
ये आप तब देंगे अगर पेशेंट इचिंग की भी कंप्लेन करता है। अब रिजेक्ट सिरप आप दें पेशेंट को, अगर पेशेंट लेस देन 2 ईयर्स का है तो आधा चम्मच या छोटा चम्मच पेशेंट को पिला दें एक रात को सोने से पहले। 2 से 5 साल का बच्चा है तो 1 चम्मच पिला दें रात को सोने से पहले, या अगर 10 साल का बच्चा है तो 1.5 चम्मच पिला दें, और 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो 2 चम्मच पिला दें, ठीक है। फिर हमारे पास एक सिरप होता है न्यूसेफ, जिसमें सिफाड्रॉक्सिल है, ठीक है। सो ये सिरप 30 mg पर kg पर डे आप देते हैं अगर जो इम्पेटाइगो है वो स्प्रेड कर जाए बिलो द माउथ, ठीक है। तो बच्चों में फिर आपने ये सिरप स्टार्ट करवाना होता है, सिफाड्रॉक्सिल होता है इसमें। अब ये आप 1 चम्मच देंगे, आधा चम्मच देंगे। सो 1 चम्मच अगर आप दे रहे हैं तो दिन में 1 दफ़ा दें, आधा चम्मच दे रहे हैं तो आप सुबह शाम दें। ओनली रिकमेंडेड इफ़ एक्सटेंसिव इम्पेटाइगो इज सीन इन द पेशेंट, नॉर्मली आप इसको रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। Now, while you are checking the patient of impetigo, must wear mask and gloves, and then check the patient. After examination and checkup, discard that mask and gloves and sanitize your hands and then wash the face, ठीक है। I hope आपको ये impetigo वाला केस अच्छे से क्लियर हो गया है guys. If you like the video, do share it with your friends and fellows as well. Thanks for watching.